Now, after doing the assumptions of revealed preference theory and the derivation of the demand curve from revealed preference, we have the last leg which should be studied is the comparative study of revealed preference with the indifference curve analysis. Revealed preference और indifference curve का तुलनात्मक अध्ययन, comparative study. First comparison क्या है? Samuelson's revealed preference theory assumes that the income elasticity is positive. It assumes that income elasticity is positive, and thus it does not deal with inferior goods or given goods. Samuelson's theory of revealed preference fails when the good is an inferior good, क्योंकि वो assume किया positive income elasticity. तो inferior good और given good को explain नहीं कर सका, which Hicks has shown to be very important in the theory of demand. So Tapas Majumdar in his book उस दिन इस किताब का जिक्र किए थे, measurement of utility observes. It is unable to explain the demand theorem when the income effect is negative, and it is unable also to expand the demand theorem to allow for the case where the income effect is negative and the negative effect, income effect, larger than the positive substitution effect. सैमुएल्सन से पूछा गया, आप नोबेल लॉरिएट है, नोबेल प्राइज विनर है, और आपने इस तरह गिवन गुड छोड़ दिया, इंफीरियर गुड को छोड़ दिया, which is a very important good. सैमुएल्सन ने जवाब दिया, लेकिन बहुत खराब जवाब था. सैमुएल्सन क्या बोले, पहले हिंदी में बोलकर हम एग्जैक्ट लैंग्वेज इंग्लिश में बोलेंगे. देखो, क्लास में कॉन्सेप्शन ठीक करोगे, कॉन्सेप्शन अगर ठीक नहीं रहा तो क्लास में वही किताब नोट ले जाने होगा. मैंने 40 साल में कभी क्लास में किताब लेकर नहीं पढ़ाया. So you must have a very good conception of the subject. Only then you will go to the classroom with nothing in hand and power your presentation. So सैमुएल्सन को पूछा गया, जब आपने गिवन गुड ने एक्सप्लेन नहीं किया, तो सैमुएल्सन का जवाब बहुत खराब जवाब था. उन्होंने कहा, जे मैंने देखा जे गिवन गुड जो है ये एक फॉल्स थ्योरम है, गलत थ्योरम है, और मेरा ये क्रेडिट है, डिस्क्रेडिट नहीं, जो हम एक फॉल्स थ्योरम को व्याख्या नहीं किए हैं. कितना खराब जवाब. गिवन गुड फॉल्स थ्योरम नहीं था. It is absolutely true. So Samuelson के शब्दों में, what did Samuelson say? But the phenomenon of Giffen's paradox reminds us that the Marshallian proposition is not a true theorem, and it is to my theory's credit rather than discredit if I refuse to enunciate a false theorem. A very bad answer from a Nobel laureate. दूसरा, Samuelson's revealed preference is based on strong ordering hypothesis. और indifference curve क्या था? It was based on weak ordering hypothesis. Strong और weak में क्या अंतर है? Weak ordering, you have many combinations, and you have the presence of indifference. Presence of indifference. कोई भी दो, मेरा संतुष्टि है समान. या वीक ऑर्डरिंग, मेनी कॉम्बिनेशंस, कोई भी कॉम्बिनेशन इंडिफरेंस कर्व में दो, मेरा संतुष्टि समान है. एंड implies the presence of indifference. Samuelson's strong ordering implies absence of indifference. कभी भी हम नहीं बोलेंगे कोई भी दो, हम बोलेंगे इसको दो. So Samuelson's revealed preference denotes the absence of indifference, and only one combination. कभी नहीं बोलेंगे कोई भी दो,
बोलेंगे इसी को दो, और जब बोलेगा इसी को दो तो वह हमेशा पसंद करने होगा दूसरा सबसे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग से जुड़ा हुआ है कंसिस्टेंसी। इफ A is revealed preferred to B, then B can never be revealed preferred to A. So strong ordering implies that the consistency assumption is also fulfilled. Third difference is on the approach. Revealed preference theory was behavioristic, एक्चुअल बिहेवियर पर आधारित है, लेकिन इंडिफरेंस का एनालिसिस क्या था? इंट्रोस्पेक्टिव या साइकोलॉजिकल. इट वाज इंट्रोस्पेक्टिव या साइकोलॉजिकल. And revealed preference is based on the actual behavior of the consumer. Scientific theory है. इसलिए डॉक्टर H.K. मनमोहन सिंह in his book Demand Theory and Economic Calculations in a Mixed Economy observes, if he observes the growing desire of the rank and file of economists to have a scientific explanation of consumers' behavior, gradually led to the development of a method that seeks to enunciate the demand theorem from observed consumers' behavior. इसको बार बार सुनकर लिख लोगे. अब कौन अच्छा है, बिहेवियरिस्टिक ना इंट्रोस्पेक्टिव? तापस मजूमदार जो JNU में प्रोफेसर है, अपने पुस्तक मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी में लिखते हैं बिहेवियरिज्म का बहुत बड़ा एडवांटेज है, गलती नहीं होगा, क्योंकि तुम खाकर चख करके बोल रहे हो कौन अच्छा है, गलती नहीं होगा, लेकिन ज्यादा कॉम्बिनेशंस नहीं होगा. इंडिफरेंस का मैं करोड़ों कॉम्बिनेशन, खाने नहीं पड़ रहा है, सोच रहा है कुछ भी दो, मेरा संतुष्टि श्याम समान है. लेकिन जब किसी को खाने पड़ेगा, द चॉइस हैज टू बी लिमिटेड. 5-6 कम उम्र का खाएगा, 20 ठो 100, उससे अधिक नहीं. सो तापस मजूमदार बोल रहे हैं, उनका कोटेशन इन हिज बुक Measurement of Utility. Behaviorism has certain great advantages of trading माने पैर रखना, of trading only on observed grounds. It can never go wrong. But whether it goes far enough is the question. ज़्यादा दूर नहीं जा सकेगा, क्योंकि choice has to be limited. इसके बाद सैमुएल्सन ने एक चीज कहा, जे अगर हम लोग नंबर 4 हम लोग बहुत ज्यादा कोई खा सकता है, इफ यू कैन ऑब्जर्व ए नंबर ऑफ कमोडिटीज, ए नंबर ऑफ प्राइस कमोडिटी कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा, तब उसका लोकस जो है वो हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ द इंडिफरेंस कर्व. बहुत ज्यादा कोई एक सुपर ह्यूमन बीइंग आया जो 1000 कॉम्बिनेशन खा सकता है, तो उसका लोकस मे बी द इक्विवेलेंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व. ये सैमुएल्सन कहा था और फर्दर डेवलप किया था IMD लिटिल एंड HS हाउथैंकर. दे एग्रीड विथ सैमुएल्सन. और हिक्स जिसका समालोचना सैमुएल्सन किया था, हिक्स एग्री किया. जो लोग शिक्षित आदमी है, वो लोग जो अच्छा करता है उसको मानता है, लड़ाई झगड़ा भी करता है तो शब्दों में करता है. तो हिक्स क्या बोले? दैट सैमुएल्सन ने एक ऑल्टरनेटिव थ्योरी प्रोड्यूस किया टू हैव शोन दैट इट इज अ डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेटिव टू द इंडिफरेंस मेथड इज द लेटेस्ट ऑफ सैमुएल्सन्स कंट्रीब्यूशन टू डिमांड थ्योरी. हिक्स का शब्द में है, लिख लोगे. To have shown that it is a distinct alternative to the indifference method is the latest of Samuelson's contribution to demand theory. And number 5, Samuelson में assumptions कम हैं. जो theory में assumptions कम हैं और predictive power same है, एक ही चीज लगभग predict करता है,
इसका एजम्पशन कम है, उसको हम लोग प्रेफर करते हैं। वहाँ एक तो नाम है ओकन्स रेजर। ओकन्स रेजर का मतलब होता है पार्सिमनी। पार्सिमनी का मतलब होता है कंजूसी, मक्खी चूस, कंजूस। तो सैमुएलसन ने किसने कंजूसी किया? किसमें? एजम्पशंस में कंजूसी किया, एजम्पशंस में पार्सिमनी किया। सो इफ टू थ्योरीज have equal predictive power, the one with fewer assumptions, जिसमें assumptions कम है, that will be preferred. यह तुलना हुआ। इसके साथ कुछ समालोचना है सैमुएलसन का, वह हम लोग आज बोल करके समाप्त करेंगे इस थ्योरी को। क्रिटिसिज्म्स। फर्स्ट क्रिटिसिज्म है that there are points of indifference on every side of a given plan. उदासीनता जीवन में रोज आएगा, इसको छोड़कर तुम चल नहीं सकते हो। There are points of indifference on every side of a given plan. जाते हैं मीठा दुकान में मिठाई खरीदने, रसगुल्ला भी खरीदने का मन करता है और क्या बोलते हैं खीर कदम भी खरीदने का मन करता है। समझ नहीं सक रहे हैं, उदासीन हो गए हैं, कौन ले। तब क्या करते हैं? दुकानदार से पूछते हैं कौन ताजा है, कौन अच्छा है, कौन आज बना। जैसे ही पूछा, यू हैव बिकम इंडिफरेंट। उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है हम लोग का ऑर्डरिंग कि जाकर बोले इसी को दो, इसी को चाहिए। आवर ऑर्डरिंग इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। दुकान जाते हैं कपड़ा खरीदने, शर्ट पैंट खरीदने, लड़की लोग सलवार सूट खरीदने दोस्त को ले जाते हैं। दुकानदार 300 पीस दिखलाया, 5-6 ठो अलग किया, पसंद नहीं कर पा रहे कौन ले। मतलब इंडिफरेंस आ गया, उदासीनता आ गया। तब दोस्त से पूछते हो कौन अच्छा है, कौन पहनने से हमको अच्छा लगेगा। दोस्त को प्यार करते हो इसलिए नहीं, आदमी सबसे अधिक अपने आप को प्यार करता है। दोस्त को इसलिए पूछते हो क्योंकि तुम निर्णय नहीं ले पा रहे हो, यू हैव बिकम इंडिफरेंट। इस दुकानदार से भी पूछते हो किसका रंग नहीं उठेगा, कौन श्रिंक नहीं करेगा, धोने से सिकुड़ नहीं जाएगा। दैट मीन्स यू हैव बिकम इंडिफरेंट, यू हैव बिकम उदासीन। उदासीनता से दूर नहीं रह सकते हैं हम लोग। दैनंदिन जीवन में रोज इंडिफरेंस आएगा। सेकेंड क्या है? सैमुएलसन ने सिर्फ एज्यूम किया था पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, इसलिए वो गिवन गुड की व्याख्या नहीं कर सका, इंफीरियर गुड्स की व्याख्या नहीं कर सका। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द इंफीरियर गुड्स। मेथड बहुत अच्छा था, बिहेवियरिस्टिक मेथड, लेकिन इंफीरियर गुड की व्याख्या नहीं कर सका। इसलिए वह थ्योरी, मेथड अच्छा है लेकिन कंटेंट ऑफ द डिमांड थ्योरम में कम है। डॉक्टर H.K. मनमोहन सिंह फिर कहते हैं अपने पुस्तक डिमांड थ्योरी एंड इकोनॉमिक कैलकुलेशंस इन ए मिक्स्ड इकोनॉमी, Samuelson, while it makes great improvement in the context of methodology adopted, in respect to the content of the demand theorem, it is a few steps backwards than the indifference curve theory. Content कम है, सिर्फ सुपीरियर गुड का डिस्कस किया, इंडिफरेंस कर्व का कंटेंट ज्यादा है। वो इंफीरियर गुड भी डिस्कस किया, सुपीरियर गुड भी डिस्कस किया। इसलिए मनमोहन सिंह कहते हैं मेथोडोलॉजी तो बहुत सुंदर है, लेकिन इन रेस्पेक्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ द डिमांड थ्योरम इट इज अ फ्यू स्टेप्स बैकवर्ड्स देन द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। और लास्ट में हिक्स कहते हैं सैमुएलसन को, सैमुएलसन्स हॉर्स, सैमुएलसन्स का घोड़ा, रिवील प्रेफरेंस, was a wonderful performer on the flat but unable to jump fences. ये चीज लिख लोगे, किताब में नहीं मिलेगा। सैमुएलसन, हिक्स के शब्द में, Samuelson's revealed preference theory was a wonderful performer on the flat but unable to jump fences. फ्लैट ग्राउंड में बहुत अच्छा रिवील प्रेफरेंस परफॉर्म किया, लेकिन जैसे ही बेड़ा आ गया घोड़ा उसको तड़प नहीं सका, जंप नहीं कर सका। फ्लैट ग्राउंड क्या था?
सुपीरियर गुड्स, बहुत सुंदर व्याख्या किया। लेकिन जैसे इंफीरियर गुड और गिवन गुड का फेंस आ गया, बेड़ा आ गया, वो थ्योरी जंप नहीं कर सका, थ्योरी रुक गया। इट कुड नॉट जंप फेंसेस। सैमुएलसन इसका जवाब दिया और हिक्सेस हॉर्स, हिक्स का घोड़ा, इंडिफरेंस कर्व requires luxury food like continuity assumption which my hardier animal can do without. हिक्स का घोड़ा इंडिफरेंस कर्व को लग्जरी फूड, इतना इतना assumption चाहिए जो मेरा घोड़ा बहुत हार्ड है उसका जरूरत नहीं है। फिर हम बोलते हैं सैमुएलसन्स वर्ड्स, Hicks's odds indifference curve requires certain luxury food which my hardier animal can do without. So ये सब समालोचना है, लेकिन समालोचना रहते हुए भी Samuelson's revealed preference has made a great improvement in consumers' behavior. नया मेथड निकाला, behavioristic approach. It is based on the actual behavior of the consumer. इसलिए समालोचना रहते हुए भी we give Samuelson credit for enunciating a new theory, based on a new method, the behavioristic method. Thank you. कल हम लोग करेंगे consumer surplus, very important. Modern theory of consumer surplus. Consumer surplus बहुत पहले डुपिट दिया था, उसके बाद 1890 में मार्शल दिया प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स किताब में, उसके बाद हिक्स ने दिया इंडिफरेंस कर्व से, मार्शल दिया था यूटिलिटी कर्व और हिक्स दिया था इंडिफरेंस कर्व से। सो कंज्यूमर सरप्लस अंडर ग्रेजुएट में पढ़े हो मार्शल का, इसमें है मॉडर्न थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एमए में। मॉडर्न थ्योरी मींस कंज्यूमर सरप्लस गिवन बाय हिक्स, given by with the technique of indifference curves। यह हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।